Yes, fine. Today will be starting with first we'll revise 5-10 minutes all the PLSQL topic, and then we'll be moving for this uh, uh, embedded and dynamic SQL, which will be the last part of this unit. So before starting with the revision of PLSQL, what we have learned in PLSQL will revise for 5-10 minutes. Okay. So initially we started with the block, and there are two different types of block in PLSQL. One is named and another is unnamed block. So when we are using unnamed block, there will be no name given to that block. So normally the unnamed block will always be identified by having a script where you will be finding declare, which is optional, then begin and end section. So if you find this kind of thing, then we'll be thinking that we are going for unnamed block. Okay. Then for named block, we'll be having two options: named block where the name is given. Okay, so like functions and procedure. Now what is the need of function and procedure? Yes, why we require this functions and procedure? If we want something that will be repeatedly asked or repeatedly done, so for that we write a code, and in that block the steps are written. So whenever we require as per our requirement, then what we'll be doing is we'll be calling that function in our another script. So same similar thing is stored. Why the name is given as stored procedure or stored function? Because this are going to be stored information of all the functions you have created and procedure in the system. So whenever you will be, once you have written that, you can call n number of times. Okay, so store procedure and functions are written at once, and it will be called for n number of times. And whenever you have to call any procedure that is named block, you will take a help of unnamed block to call them. Clear? So to call a function, what we do is select function name from dual. Okay, whenever we have to call a function, we write select function name from dual. But if we want to call procedure, then yes, if we call a procedure, then the steps are either you'll write begin, then procedure name and its parameter and end. This is the one option. Second option is you will write execute procedure name. Okay, these are the two ways where we can call the stored procedure. Procedure and function differences: procedure will never, may or may not return a value, but function always you have to return some or the other value. Okay, fine with this. Then we'll be moving for cursor. Now what happens for a cursor is whenever you want to access a table, so add backend, what happens is that table is coming to a main memory. So all the operations are done in main memory, and then again if you return back or commit that table, the things are stored in the storage device. So if you want to get how the cursor works, how, what happens, why we are not getting result, why we are getting that result, so we'll writing a cursor. So cursor will help us in doing the doing we can view the work done by a cursor at backend. Okay, so we have two different options of writing a cursor. One is implicit cursor. Implicit cursors which are automatically being called, we are not aware of that thing how this is been called, but whenever we call any function, we write any select query, at that moment cursor holds a table, and that table is nothing but by default there will be an implicit cursor executing. And what different four parameters this implicit cursor is giving? That is SQL percent found, SQL percent not found, SQL percent is open, and SQL percent row count. These are the four attributes which where we can see the result. These are the four things which cursor does: either the table is open or not, second is the record is found or not. If it is found, then it will show you result. If it is not found, it will give, don't give any message, but we can print by taking that attribute in our program. Then comes last is row count. So if you want to get ki how many of this
condition the rows are present in the table, so we'll use row count to display that amount. Suppose there is update, you are performing an update query, and in your table same record will have multiple times stored in the table. So how many times the updation has been done, if you want to get that status, so what you'll get is you will use row count. Okay. Now after cursor we have seen triggers. Now what is trigger? Yes, what are trigger? Anyone can tell me what is trigger? Hello. Ah, Rahul. A trigger is a set of action which is used to update the table uh, and have a backup for it whenever there are changes made in the table. Yeah, a trigger name itself tells that it's some kind of event is happening on the table. You can preserve the status. Okay. So trigger is whenever the event will occur on your table, then you can save the things either before the before doing that thing or after doing that thing. Okay, so there is for trigger there is two different types of triggers. One is called as row level, another is a statement level trigger. Row level, it will be working for each of the row in the table. For that the trigger is being called. And what is statement level? Statement level trigger will be running for table at once. Okay, so these are the two difference. Then there is called as after before trigger and after trigger. Now what happens is before trigger and after trigger. Can you give me any example? सी बिफोर ट्रिगर इज जस्ट लाइक, देखो आप कार बाइक राइड कर रहे हो एंड सिग्नल लग गया, तो आपको पहले ही पता है कि सिग्नल लगा है तो यू नीड टू स्टॉप. सो दैट एक्शन इज क्या, आपने वो पहले से पता है, यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट दिस थिंग्स एंड यू विल बी पुटिंग अ स्टॉप. नाउ आफ्टर ट्रिगर मतलब अगर आप लोग जा रहे हो ऑन द वे एंड यू विल बी फाइंडिंग अ स्पीड ब्रेकर, तो स्पीड ब्रेकर आने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्पीड कम करते हो या फिर यू अप्लाई सडन ब्रेक, वो आपको पता नहीं रहता है, लेकिन ऑन द वे वो चीज आ गई. समझ में आ रहा है? जैसे सिग्नल है तो आपको पता ही है कि रुकना है. सो बिफोर ट्रिगर एंड आफ्टर ट्रिगर जस्ट लाइक वर्क्स लाइक द सेम. अभी आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स किया उसमें आपको इतना फ्लेवर नहीं पता चलेगा कि बिफोर में क्या होगा एंड आफ्टर में क्या होगा. लेकिन whenever you will be going for a bigger size of application, then you will be getting that कि before में क्या फायदा होगा एंड आफ्टर में. सो सपोज आपको कोई एक्शन मतलब टेबल पे कोई कुछ मॉडिफाई करे, उसके पहले का रिकॉर्ड आपको स्टोर करना है, तो वी कॉल इट एज बिफोर ट्रिगर. ओके. एंड अगर आपको वो चेंजेस होने के बाद प्रिजर्व करना है कि भाई यहाँ पे चेंज क्या हुआ था करंटली, सो दैट स्टेट इज स्टोर्ड एज आफ्टर ट्रिगर. क्लियर? बिफोर एंड आफ्टर. सो दीज आर द टू डिफरेंट वेज. तो ट्रिगर में फोर डिफरेंट टाइप्स बोलते हैं. वन इज रो लेवल, स्टेटमेंट लेवल, देन अनदर इज बिफोर एंड आफ्टर ट्रिगर. क्लियर? एंड ट्रिगर कौन से प्रॉब्लम्स के लिए या कौन से डीएमएल क्वेरीज के लिए ट्रिगर्स वर्क होते हैं? देयर आर ओनली थ्री डीएमएल क्वेरीज. वन इज इंसर्ट, देन अनदर इज डिलीट एंड अपडेट. ये तीन ही क्वेरीज ऐसे होते हैं जिसकी वजह से टेबल में चेंजेस होते हैं. समथिंग चेंज हैपन्स व्हेन एवर दिस टाइप ऑफ क्वेरीज आर बीन रन. अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आप स्टोर नहीं करते हो, यू आर जस्ट यूज दैट सिलेक्ट फॉर डिस्प्ले पर्पज. बट उससे आपका क्या होगा, योर टेबल इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड. क्लियर? देन तुम लोगों का जो ये है क्या बोलते हैं उसको, what I was telling about this. हाँ, ट्रिगर में whenever you will be writing a trigger, you have to always think on which new value you are preserving or old value. तो वहाँ पे हमने प्रैक्टिकली करते वक्त देखा था कि how to use that reference, new के लिए new and old के लिए old. Clear? So this is what all about trigger. So PLSQL is very important, and PLSQL itself tells that you can मतलब आप लोग एक normal program लिख के you can take the help of queries to design your application. ठीक है?
जैसे हमने अब तक क्वेरी देखे तो हम लोग क्या कर रहे थे, अगर मुझे इंसर्ट करना है तो मुझे खुद को टाइप करना पड़ता है हर चीज। तो क्या ऐसे कुछ हो प्रोग्रामिंग जैसे कि जो वेरिएबल में सिर्फ वैल्यू डालो और वो ऑटोमेटिक वर्क कर जाए? फॉर दैट ऑल रीजन वी आर राइटिंग PLSQL. Clear with this? What is PLSQL? What is SQL? What we have learned till now? SQL के सारे different types के queries हमने check किए. Clear? Now, for today's lecture, what we are going to start is embedded and dynamic SQL. अब आप मुझे पूछोगे embedded and dynamic SQL means what? The name itself tells. Embedded मतलब क्या? Will tell me. See, first we'll be learning. मेरा नोटपैड विंडो दिख रहा है आप लोगों को? ओके, हाँ, आप बताओगे एम्बेडेड व्हाट दिस वर्ड मीन्स? एम्बेडेड, yes, do you know what is embedded? Embedded word means, see, I'll give one simple example. I have a int main program. किसके लिए लिखते हैं हम लोग int main? Yes, ये नॉर्मल क्या लग रहा है? एक सी का प्रोग्राम हम कंसिडर करते हैं, ठीक है? अब प्लीज रिप्लाई, ओके, ये है, दिस इज व्हाट यू फाइंड एज अ सी का प्रोग्राम लिखा है। एंड अगर कोई मुझे ऐसा फैसिलिटी दे जहाँ पे मैं एसक्यूएल के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लूँ, विल बी हैप्पी? विल यू बी हैप्पी फॉर दिस? अगर ऐसा कुछ हो कि जिसमें आप लोग अपना होस्ट लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखिए एंड इन दैट यू विल बी फाइंडिंग सम एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, कितने लोगों को लग रहा है ये चीज अच्छी हो जाएगी? इट विल बी वेरी, हाँ, ऋषभ, सो yes, yes, okay. Now, what I mean to tell is embedded SQL is a concept where you can write SQL statement in your host language. Okay. Now what happens is आप लोग वेबसाइट देखते हो, हाँ, एवरीबडी लॉग इन्स विथ योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। कभी ये सोचा है कि हम जो यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, जब हम सबमिट करते हैं तो अगर वो करेक्ट है तो हमारा होम पेज ओपन होता है, करेक्ट? हमारा लॉगिन पेज खुल जाता है एंड विल बी एक्सेसिंग आवर ओन डेटा। ओके, व्हाट अगर आपने वो गलत डाल दिया, इफ यू आर मेकिंग एन मिस्टेक इन entering that username and password, then what happens when you enter username and password with different thing? So you will be getting an error message that this username or password doesn't match. Such kind of every application uses. Now who are the people who will be looking for this? Either your username is correct or wrong. So this is all about what we people are nowadays is scripting language, or we can write any host lab application with database connectivity. Now how it helps, see, आप लोगों ने क्या लिखा है, what you are writing is, I'll show you, a website आपने डिजाइन कर दी, you are writing a website. अब इस वेबसाइट में आपने यूजर नेम और पासवर्ड का आपने पासवर्ड ये दो चीज एंटर करवाए यूजर से। यू हैव क्रिएटेड अ वेबसाइट और आपने उसमें से क्या डिमांड किया? यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब ये जो यूजर नेम है, ये क्या है? एक टेक्स्ट, बराबर? एंड ये क्या होगा? एक टेक्स्ट। ये क्या हुआ? आपका फ्रंट एंड। दिस इज ऑलवेज कॉल्ड एज फ्रंट एंड, जहाँ पे आप एक जीयूआई पेज डिफाइन करते हो, उसको कलर्स यूज करते हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते हो, कैसे यूजर से डेटा लेना है, दैट ऑल थिंग
what you all think is visualized, and that is nothing but acting as front end. अब ये हो गया फ्रंट एंड. तो फ्रंट एंड में क्या होता है, यू ऑलवेज डू अ डिजाइनिंग ऑफ एन एप्लीकेशन. ठीक है. और ये भी इंपॉर्टेंट करता है कि आप फ्रंट एंड कैसे डिजाइन करते हो. सो फ्रंट एंड क्या हो गया, आप एप्लीकेशन कैसे डिजाइन करने वाले हो बाय प्लेसिंग योर मतलब आप कॉलम्स कैसे प्लेस करोगे, यूजर नेम कैसे लेने वाले हो, टेक्स्ट से लेने वाले हो या कंबो से लेने वाले हो, या रेडियो बटन्स यूज करने वाले हो. सो बेस्ड ऑन दिस वी डिजाइन एन एप्लीकेशन. और जो अभी का जो करंट ट्रेंड है दैट इज यूआई एंड यूएक्स, व्हाट दीज पीपल आर डूइंग, ये एक कंप्लीट टीम होती है जो सिर्फ डिजाइनिंग पे फोकस करती है. आपको पता है, अगर आप यूआई यूएक्स में कुछ इंटरेस्ट दिखाते हो एंड इफ यू हैव आइडेंटिफाइड समथिंग अबाउट यूआई यूएक्स, यू विल बी फाइंडिंग यहाँ पे कलर्स, फॉन्ट की साइज, ठीक है, और वो फॉन्ट का कर्व क्या यूज करते हो, कितना कर्व होना चाहिए, एंड द साइज ऑफ ईच कंपोनेंट, साइज ऑफ ईच कंपोनेंट. मतलब आप लोग जो भी डिजाइन कर रहे हो वो इतना अच्छा होना चाहिए कि वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, तो ही लोग आजकल उसको एक्सेप्ट करते हैं. एंड इफ दैट इज नॉट द थिंग, देन योर सिस्टम इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल. ओके. अब ये जो चीजें आज मैं प्रैक्टिकल्स में बता रही हूँ, आज या नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में जो बताने वाली हूँ, ऑल दिस थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर योर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. तो कुछ भी डाउट हो यू आस्क मी. ओके. नाउ यूआई यूएक्स मतलब क्या आ गया, आप डिजाइन क्या कर रहे हो, दैट इज योर फ्रंट एंड. अभी हम लोगों को रिक्वायर्ड क्या है, यूजर नेम एंड पासवर्ड. सो क्वेश्चन क्या है, जब आप सिस्टम डिजाइन करोगे तो ये चीज आपको यूजर से लेना है और ये चीज भी यूजर से लेना है, क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है. अगर आपको यूजर आईडी क्रिएट करना है जो कि इंटीजर वैल्यू है, तो आप ये यूजर से मांगोगे क्या, यू विल आस्क दिस फ्रॉम यूजर. यस. अब आप यूजर आईडी है तो यूजर आईडी 1234 नहीं डालेगा, दिस शुड बी सिस्टम जनरेटेड, करेक्ट. तो इसको हम लोगों को सिस्टम जनरेट होना चाहिए. मैं आपको सिंपल वे से प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन के और लेके जा रही हूँ. ठीक है. ये यूजर ने ये टेक्स्ट ये हमने जनरेट करना चाहिए. यूजर ने क्या करना चाहिए, उस यूजर आईडी को एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलना चाहिए. ये हमें कंपैरिजन के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ये हार्डली 2 या 3 डिजिट का इंटीजर होगा. एंड ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा दैट विल बी हैविंग मोर कैरेक्टर्स. सो कैरेक्टर्स का कंपैरिजन ज्यादा टाइम लेता है इन स्पाइट ऑफ इंटीजर कंपैरिजन. ठीक है. सो व्हाट विल बी सजेस्ट, ये मेरा क्या बन गया, फ्रंट एंड. अभी फ्रंट एंड से मुझे ये पता चला कि ये स्टोर करना पड़ेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड. ऐसा तो नहीं होगा एक बार यूजर ने यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया और नेक्स्ट टाइम ये यूज नहीं करेगा. वी हैव टू गिव देम चांस कि ये हर बार यूज करे. ठीक है. और यही यूजर नेम और पासवर्ड वो कंपेयर करे. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं एक टेबल बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ये यूजर नेम और पासवर्ड क्या करना है, स्टोर करना है. तो मेरे पास क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर टेबल, उसमें 2 कॉलम्स होंगे. एग्री. कॉलम क्या होगा, यूजर नेम होगा या नहीं, यूजर नेम एंड पासवर्ड. ये मेरे क्या होंगे, 2 कॉलम्स. और मुझे यूजर आईडी खुद से जनरेट करवाना है, तो मैं यूजर आईडी करके एक नया कॉलम भी ऐड करूंगी. सो मेरे टेबल में हो गए टोटल 3 कॉलम्स. समझ में आ रहा है. सो दिस इज माई टेबल. व्हाट इट इज गोइंग टू स्टोर इज यूजर नेम एंड पासवर्ड. और यूजर आईडी क्या है जो मुझे जनरेट करना है, तो फॉर मी दिस विल बी ऑटो इंक्रीमेंट. और आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, सीक्वेंस ऐड कर सकते हो. इफ यू आर गोइंग विथ ओरेकल यू विल बी यूजिंग सीक्वेंस. और मेरे दूसरे जो कॉलम्स है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, उसको मैं क्या बनाऊंगी, ये 3 कॉलम्स मेरे टेबल में रहेंगे. whenever the person hit the submit button of this UI, the username and password should be stored in this table. Agree? Yes ना, यही होना चाहिए. Yes. Okay. फिर what we'll be doing is we have to write a program. प्रोग्राम लिखना है और ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो होस्ट लैंग्वेज हो, जो आपने सिलेक्ट की, होस्ट लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की. आइदर सम लोग बोलेंगे मुझे जावा में कोड करना है, सम लोग बोलेंगे मुझे डॉट नेट में करना है, सम पीपल विल टेल मुझे पाइथन में करना है. ठीक है. कुछ लोग बोलेंगे नहीं मुझे स्क्रिप्टिंग यूज करना है, पीएचपी यूज करना है.
ठीक है, फिर कोई लोग बोलेंगे मुझे और कोई नई लैंग्वेज यूज करना है, तो देर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शन। और कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे मुझे सी और सी प्लस प्लस में कोड करना है। अब आपको क्या करना है, दिस इज होस्ट होस्ट लैंग्वेज प्रोग्राम। अगर आपने जावा प्रोग्राम लिया है तो उसको अगर डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो उसको बोला जाता है जेडीबीसी, सॉरी जेडीबीसी, इसको बोलते हैं जावा। अगर डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो आपको लगेगा जेडीबीसी, एंड फिर आप क्या करोगे, डीबी के साथ कनेक्ट कर सकोगे। सो दिस इज फॉर जावा। अगर आपको जावा प्रोग्राम लिखना है एंड यू वांट टू यूज दिस जावा टू बी कनेक्टेड विद द डेटाबेस, यू हैव टू यूज दिस जेडीबीसी। दिस इज द ड्राइवर, दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेस। आप सीधा होस्ट को डेटाबेस के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते हो, तो आपको एक मिडलवेयर चाहिए, एंड दिस ऑल कॉल्ड एज मिडलवेयर। सो आप क्या करोगे, जावा को जेडीबी के साथ जेडीबीसी के साथ यूजिंग दिस जेडीबीसी ड्राइवर यू हैव टू कनेक्ट विद डीबी। ये हो गया जावा के साथ की बात, करेक्ट। और इसी को अगर मैं इस सिस्टम को टू टीयर में, अब टू टीयर में इंप्लीमेंट करूं तो मुझे लगने वाला है क्या, जेडीबीसी एंड मेरा जावा। तो जेडीबीसी के साथ ही डीबी कनेक्टेड है और मेरा एप्लीकेशन, तो ये क्या हो गया, एक ये टायर एंड दिस विल बी सेकेंड टायर। तो टू टीयर सिस्टम या टायर्स टीयर सिस्टम। तो आपको क्या फर्स्ट ईयर में क्या लगता है, जावा, एंड सेकेंड टीयर आर्किटेक्चर में क्या लगेगा, आपका जो सर्वर होता है, सर्वर इन द सेंस आपका डेटाबेस सर्वर, उसी के साथ आपका जेडीबीसी स्टोर्ड रहेगा। सो दिस इज टू टीयर आर्किटेक्चर। इसमें आप वेब पेज नहीं डिजाइन कर सकते हो टू टीयर आर्किटेक्चर में। ये आप एक जावा का प्रोग्राम लिखते हो और उसको जेडीबीसी के साथ कनेक्ट करते हो, और आपका जो भी आउटपुट है वो कंसोल बेस्ड आता है। समझ में आ रहा है टू टीयर आर्किटेक्चर किसको बोलते हैं? यस, टू टीयर। आपका क्लाइंट और सर्वर होता है, क्लाइंट के पास होस्ट लैंग्वेज होती है, सर्वर के पास ही डेटाबेस होता है। समझ में आ रहा है? यस। या आप लोग बीच बीच में से क्वेश्चंस पूछा करो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज दिस इज ऑल वील बी। हाँ ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं टू टीयर आर्किटेक्चर। अब अगर हम लोग थ्री टीयर आर्किटेक्चर देखें, तो थ्री टीयर आर्किटेक्चर में क्या होगा, आपको जेडीबीसी का प्रोग्राम तो लिखना है, मतलब आप जावा का कोड लिखने वाले हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक एप्लीकेशन सर्वर यूज कर रहे हो बीच में, एप्लीकेशन सर्वर, और इसको कभी कभी बोला जाता है वेब सर्वर। ठीक है, और फिर आप क्या कनेक्ट करते हो, डीबी के साथ। इस केस में क्या होता है, डेटाबेस एक अलग अलग टीयर हो गया, आपका दूसरा टीयर होता है एप्लीकेशन सर्वर और वेब सर्वर, और पहला टीयर होता है जहाँ पे आप स्क्रिप्ट लिखते हो, उसको बोलते हैं जावा प्रोग्राम, जावा सोर्स। ठीक है। अब आप मुझे बताओगे मैम ये क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है? तो इस केस में आपका प्रोग्राम होस्ट होता है, मतलब योर प्रोग्राम इज बीन कॉल्ड विथ यूआरएल, ये वेब पेज बन जाता है। ठीक है। अब आपने जावा प्रोग्राम लिखा यूजिंग एनी एप्लीकेशन सर्वर, मतलब आप क्या करते हो, टॉमकैट अपैची यूज करते हो, या फिर आप लोग बहुत सारे एप्लीकेशन सर्वर है, वेबस्फियर है, ग्लासफिश है, नेटबीन्स के साथ बिल्ट इन आता है ग्लासफिश। तो ऐसे जो सर्वर्स है वो आप यूज करते हो, तो जिसमें आप प्रोग्राम लिखते हो, और उस जावा सोर्स के साथ आपको एचटीएमएल कोड लिखना पड़ता है। ठीक है। और HTML के टैग्स आपने जितने भी सीखे वही लेना है, लेकिन उसके साथ जावा का प्रोग्रामिंग के जो सिंटैक्स होते हैं वो बोथ कैन बी कंबाइंड। क्योंकि ये वेब पेज पे आ गया तो यू हैव टू हैव यूज एनी दिस वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आपको HTML यूज करना है। सो यू विल राइट अ जावा कोड प्लस HTML कोड, एंड आप उसको किसको सेंड करोगे, एप्लीकेशन सर्वर। अब एप्लीकेशन सर्वर का काम क्या है, इसको बोला जाता है ये बिजनेस लॉजिक को अंडरस्टैंड करता है। अब बिजनेस लॉजिक क्या होता है, और आपने जो रिक्वेस्ट भेजी वो बराबर उसी सर्वर तक पहुंचाने का काम ये एप्लीकेशन सर्वर करता है। क्लियर? और यहाँ पे दो चीज बहुत मैटर करती है, एक तो गेट होता है एंड दूसरा पोस्ट। ये दो मेथड्स होते हैं जहां से डेटा आप पास कर सकते हो, यू ट्रैवल योर डेटा फ्रॉम दिस गेट एंड पोस्ट। अभी अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, मैंने अगर जीमेल का लॉग इन किया है, मैं लॉग आउट करती हूँ, सॉरी अगर मैं लॉग आउट करूँ तो मुझे मीटिंग भी ऑफ हो जाएगी। मैं दूसरा अकाउंट अपना खोलती हूँ। सी अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल रही हूँ, अब देख रहे हो यूआरएल में कुछ तो हो रहा है, देयर इज चेंज इन यूआरएल। तो ये क्या होता है, जब मैं
यूजर नेम और पासवर्ड डालती हूँ, तो वो चीजें वो वेब सर्वर लेके जा रहा है एंड बेसिकली वो सर्वर पे स्टोर करता है। सो जब वो भेजता है तो वहाँ पे दो मेथड्स वर्क करती है, गेट एंड पोस्ट। अब आप बोलोगे गेट एंड पोस्ट में, गेट मेथड लेस देन 4K का डेटा लेके जाता है और पोस्ट मेथड मोर देन 4K का डेटा साथ में यूआरएल के साथ लेके जाता है। ठीक है, क्लियर? गेट एंड पोस्ट क्या होता है, एंड फिर आपका आता है बैकएंड में डेटाबेस। तो आपका सर्वर किसी और जगह पे रिसाइड करता है, वो सर्वर मशीन जहाँ पे डेटाबेस रिसाइड कर रहा है। ये आपका जावा का कोड हो गया, और एक और लेयर ऐड हो गई, उसको बोलते हैं वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर, जिससे आप क्या बोलते हैं उसको, वेब पेज डिजाइन कर सकते हो, एंड यू विल बी राइटिंग दिस कोड इन टर्म्स ऑफ वेब पेज ओनली। सो ये जो पहुंचाने का काम है ये करेगा एप्लीकेशन सर्वर। अभी आज के डेट में आ गया एक्सएमएल, उसको बोला जाता है एक्सएमएल, मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या करता है, इंस्पाइट ऑफ टेकिंग पूरा डेटा एवरी टाइम, है ना, पूरा सब हर एक बार वेब पेज पे पूरा डेटा कैरी करने से बजाय यू वांट समथिंग विच नीड टू बी कैरी ओनली। सो ये क्या करता है, एक्सएमएल हमें हेल्प करता है कि जो रिलेवेंसी थिंग्स है वही वो साथ में कलेक्ट करके लेके जाए। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सएमएल, मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये एचटीएमएल का एक्सटेंशन है। ठीक है, एक्सएमएल में भी टैग्स होते हैं, उसके भी एक फंडामेंटल रूल्स होते हैं, और उसको जितनी इंफॉर्मेशन नीडेड है ना वही एक्सएमएल फाइल में। तो जब भी आप वेब पेज डिजाइन करते हो आपको ये फाइल तो देखनी पड़ती है। आप एंड्रॉयड ऐप डिजाइन करोगे, यू विल बी गेटिंग कि आपको एक्सएमएल फाइल में बराबर से सब चीजें डालनी पड़ती हैं, अदरवाइज इट विल नॉट बी रिट्राइव फ्रॉम योर एग्जैक्ट सर्वर। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी विल राइट अ 3 tier आर्किटेक्चर। ये हो गई, मैंने जावा की बात की। इफ आई एम यूजिंग डॉट नेट, अगर मैं डॉट नेट वाला प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ, सो व्हाट यू हैव टू राइट इज, आई हैव टू राइट अ डॉट नेट प्रोग्राम। मतलब डॉट नेट में तीन ऑप्शन है, डॉट नेट इज अ फ्रेमवर्क, उसमें आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, सी हैश, वीबी डॉट नेट, एंड आपको क्या मिलता है, ASP डॉट नेट। ASP मतलब एप्लीकेशन सर्वर पेजेस। ठीक है, देन सी हैश मतलब आप सी प्रोग्राम प्लस एक्सटेंशन टू सी, आप सी हैश में देखते हो। एंड वीबी डॉट नेट, अगर आपको प्रीवियसली वीबी 6.0 पता है तो उसी का एक्सटेंशन वर्जन है वीबी डॉट नेट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, आई एम राइटिंग अ डॉट नेट एप्लीकेशन, और मैं यहाँ पे अगर कनेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे बोला जाता है ODBC, इट्स कॉल्ड एज ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, ये आपको विंडोज वाले प्लेटफॉर्म पे यूज होता है जनरली। आप कंट्रोल पैनल में जाके एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स ढूंढोगे। सी यहाँ पे दिख रहा है आपको सबको, ODBC, यहाँ से ओपन करते हैं एंड उस सर्वर मतलब डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करते हैं, तो आपका MS एक्सेस डेटाबेस भी कनेक्ट कर सकता है, और आपने जो SQL और ओरेकल डेटाबेस यूज किया वो भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो स्टेप्स है वी नीड टू फॉलो, जैसे मैं एक्सेस डेटाबेस मेरे पास अभी सिस्टम पे नहीं है, नहीं तो आई कुड हैव एक्सप्लेन यू अबाउट दिस। ठीक है, आप ऐड भी कर सकते हो, यहाँ पे इतने सारे सर्वर है, अगर आप SQL सर्वर यूज कर रहे हो इट विल आस्क यू, अगर MySQL यूज कर रहे हो तो यू विल कनेक्ट दैट। तो इसमें स्टेप्स है, आगे आपको ड्राइवर नेम उस पाथ को, उस डेटाबेस पाथ को सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो जब आप डॉट नेट यूज करते हो तो आपका इंटरप्रिटर क्या हो, मिडलवेयर क्या होगा, ODBC, एंड ODB के साथ कनेक्शन होगा किसका, DB का, डेटाबेस का। समझ में आ रहा है? वेन यू वर्क विथ पाइथन, तो पाइथन में डायरेक्टली लाइब्रेरीज है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ पाइथन विथ योर दिस DB। पाइथन हैज इंटीग्रेटेड लाइब्रेरीज, तो पाइथन के साथ नॉर्मली आप लोग पाइथन वाली लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, उसमें ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है एज कम्पेयर टू दिस ODBC एंड JDBC जावा में जो लगता है। पाइथन में एक जार फाइल, क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेसिंग का एक फाइल लगता है, एंड यू कैन कनेक्ट विद पाइथन विद दिस डेटाबेस। अब आप PHP की बात करो तो आप PHP के लिए क्या यूज करोगे, तो PHP हैज इट्स वेब सर्वर, PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो PHP के टैग्स अगर कभी देखे होंगे तो PHP के साथ HTML आता है मिक्स्ड। सो वील राइट अ PHP का स्क्रिप्ट, एंड PHP के स्क्रिप्ट में हमें क्या करना है, व्हाट वील बी राइटिंग इज वी हैव टू यूज वेब सर्वर। तो ये कौन सा सर्वर्स यूज करता है, एक तो वैम, जो मैं यूज करती हूँ वैम, जैम्प भी होता है, एक्स, जो उबंटू में यूज होता है। सो ऐसे बहुत सारे हैं, और अभी भी नए नए रिसेंट वर्जन्स आ रहे हैं फॉर दिस PHP।
सो आप अगर पीएचपी और डेटाबेस का कनेक्टिविटी करना है तो पीएचपी लगेगा, ये एक सर्वर लगेगा प्रोग्राम करने के लिए, एंड आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल कनेक्ट विद द डेटाबेस, क्योंकि वैम्प के साथ, जैसे मैंने मेरे यहाँ पे वैम्प है, आई विल स्टार्ट दैट सी। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, मैं आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगी, एटलीस्ट एक लॉगिन पेज कैसे कनेक्ट होता है। ये मेरा वैम्प सर्वर है, ऑन हो गया, एंड इफ यू सी दिस, यहाँ पे पीएचपी का लोकल होस्ट पेज आता है, एंड यू विल बी फाइंडिंग देयर इज अ माइस्क्यूएल। सो ये इनबिल्ट माइस्क्यूएल है इसके साथ। सो आपको डेटाबेस के लिए कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है फॉर दिस। ओके, ओपन सोर्स है पीएचपी भी एंड माइस्क्यूएल, तो दे हैव ऑलरेडी इंटीग्रेटेड। सो दिस इज हाउ, तो आपने अभी तक क्या देखा हमने, कि हम लोग ये तो कर पा रहे हैं कि एक प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ता है, वी हैव टू, मतलब हम लोग जावा का प्रोग्राम लिख रहे हैं और डेटाबेस को कॉल कर रहे हैं, मतलब हमने जावा प्रोग्राम में कहीं ना कहीं वी हैव टू हैव सम एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, एसक्यूएल स्टेटमेंट, लगता है ना। सो दिस इज व्हाट वी कैन कॉल इट एज एम्बेडेड एसक्यूएल। इनिशियली सी एंड सी प्लस प्लस डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता था, उसके कुछ टैग्स है, मैं आपको नोट्स भेजूंगे उसका। तो फॉर दैट व्हाट वी यूज टू डू इज प्रो सी प्लस प्लस, प्रो सी करके एक सॉफ्टवेयर था, वी यूज टू राइट अ प्रोग्राम फॉर दिस एम्बेडेड एसक्यूएल इन दैट, बिकॉज दैट टाइम you could not find that java and this different .NET language, python. So initially when people started with c coding and they want to connect this with the database, they used to use pro c software to connect your C program with your this SQL statement, and you will execute some kind of SQL statements in that. समझ में आ रहा है what is embedded SQL? So we have to learn at least Java to be connected with the database and PHP. At least मैं दो बताऊंगी, Python भी आपको बताने का ट्राई करूंगी, लेकिन प्रैक्टिकल्स जब स्टार्ट हो जाएंगे तो इन दैट सेशन, ठीक है। सो विल आई शो यू हाउ टू। तो अभी हमारे केस में समझ में आया, यूआई जब डिजाइन करना है आपको कोई भी वेब पेज, तो यू हैव टू थिंक कि वो जो कॉलम्स है वो क्या है, और उसको टेबल में स्टोर करवाना है नहीं करवाना है, और फिर करना है तो हाउ, विच कंस्ट्रेंट्स यू हैव टू अप्लाई। तो ये डेटाबेस में एक बार स्टोर हो गया, तो आप कभी भी इसको रिट्राइव कर सकते हो। तो जब भी हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे, अब इसका अगर मुझे कोड लिखना है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं एक्सेप्ट करूंगी यूजर से यूजर नेम और पासवर्ड थ्रू दैट यूआई, एंड यूआई से मैं इसको क्या करूंगी, टेक्स्ट है इसको ले लूंगी, एंड इंसर्ट का क्वेरी फायर करके इंसर्ट इनटू माय टेबल, दैट इज सपोज यूजर क्रेडेंशियल करके टेबल होगा, तो आई राइट इंसर्ट इनटू यूजर क्रेडेंशियल, यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड की वैल्यू क्या डालूंगी, तो जो ये टेक्स्ट का वैल्यू है उसको मैं आइदर स्ट्रिंग में स्टोर करूंगी, यार वो टेक्स्ट एज इट इज पुट कर दूंगी, सो माई डेटा विल बी इंसर्टेड। समझ में आ रहा है। और जब भी मुझे बोला जाएगा कि ये यूजर नेम और पासवर्ड चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं, तो मैं क्या करूंगी, सिलेक्ट करूंगी वेयर मेरे टेबल का यूजर नेम मैचेस विद द टेक्स्ट विच यूजर हैव एंटर्ड, एंड पासवर्ड विच यूजर हैव एंटर्ड। अगर ये कंडीशन सिलेक्ट का मैच हो गया, सो आई redirect them to next page, that is login page. If it is not, I'll give you error message on page. That's it, what you'll be finding a script. समझ में आ रहा है, इट्स व्हाट इज एम्बेडेड एसक्यूएल। वन मोर एग्जांपल आई विल गिव यू। अगर आप एक्सेल का स्प्रेडशीट यूज करते हो, देखो यहाँ पे ये एक्सेल शीट है, यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स लिए, ठीक है, मैंने 3 कॉलम्स लिए, उसमें सी ये वाले, आई मेक दिस इज माय कॉलम नेम, रोल नंबर, नेम एंड डिपार्टमेंट। तो एसक्यूएल स्प्रेडशीट के साथ मैं एसक्यूएल का क्वेरी लिख सकते हो, तो इट्स लाइक दिस, I have tried one, that is equal to query, and I can select the area, और उसके बाद मुझे सिलेक्ट वाला क्वेरी लिखना है, तो इन डबल कोट आई हैव यूज सिलेक्ट स्टार मीनिंग ऑल द कॉलम्स, एंड कॉमा 1 is for true condition. So if it is matches, you have to output that. ठीक है, so I have written this query on this particular cell, then I'll get an output like as it is my table. Here you can write all the select query which we have learned to get your Excel to be accessed more uh, nicely. In spite of always applying a filter, you can design an application such that it will give you all the results in terms of queries. Fine. This is one way I have shown you for Excel. Similarly, we'll be writing a program for your this JDBC.
So I'll show you the setup today, and in next lecture we'll run the program. Now how you'll write a program in Java where you will be connecting to a database. Now what will be our plan is I'll be storing a username and password. So I have to create. I am using this Java Eclipse, and I am using my database as this MySQL. So what I'm going to do is I'll create a here no password is there. So I'll write my table. I'll create first my database. This things I need to remember while doing a program. So I'll write a create database. For example, for each लिख रही हूँ, yeah, my DB. This is my database name. ठीक है? I'll use this database and I'll create inside this a table. In create टेबल, मुझे सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर करवाना है, तो आई राइट क्रिएट टेबल. टेबल नेम इज आई यूज यूजर एंड आई राइट द कॉलम्स एज यू नेम एज वैरकर, क्योंकि हम लोग वैरकर और साइज कितना देना है यू कैन स्पेसिफाई दैट, यू नेम एंड पास. सो व्हाट आई राइट इज पास एज वैरकर. हियर आई मेड मिस्टेक, वैरकर. ठीक है, and I'll write again this is 20. This is how my table has been created. I'll insert some records in this table so that when we'll write a JDBC code, these things will be used there. Insert into user values. ठीक है, हम लोग यहाँ से वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं एक दो, एंड कुछ हम प्रोग्राम थ्रू करवाते हैं. ठीक है, इंसर्ट इनटू यूजर वैल्यूज ABC, एंड पासवर्ड भी क्या लिखते हैं, ABC. ठीक है, सेकेंड इज दो एंट्रीज आई हैव स्टोर्ड. ठीक है, अब मुझे इक्लिप्स के साथ क्या लगने वाला है, आई एम इम्प्लीमेंटिंग 2 tier आर्किटेक्चर, नॉट फॉर 3 tier आर्किटेक्चर. एक इक्लिप्स का सेटअप लगेगा, एक न्यू प्रोजेक्ट हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, माई JDBC प्रोग्राम. दिस विल बी माई प्रोग्राम, और मुझे यहाँ पे एक क्लास लगने वाला है, एंड द क्लास नेम आई विल राइट इज माई क्लास. सो मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लगने वाला है, सिलेक्ट दिस, वो पब्लिक होना चाहिए, फिनिश्ड. सो ये मेरा क्या बन जाएगा, क्लास. अभी मुझे यहाँ पे एक चीज लगने वाली है जो है MySQL का कनेक्टर फाइल. अब कनेक्टर फाइल आपको लगेगा MySQL का, वो आप नेट से डाउनलोड करोगे, एंड आई विल शो दैट इन नेक्स्ट सेशन कि उसको कनेक्ट कैसे करना है एंड हाउ विल राइट दिस प्रोग्राम. क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में आई विल इम्प्लीमेंट दैट एंड PHP वाला कोड. आई विल शो बोथ द implementation. Any doubts till now? Yes, anything you want to ask? Okay, fine. So have you started working on your projects? टाइटल फाइनल किया या नहीं अब तक? See, you have good time, utilize that, do simple project, बट ऐसे प्रोजेक्ट करो कि सब कुछ आप यूज कर रहे हो. वो 2 फॉर्म का पेज, 2 पेज भी होगा ना उस प्रोजेक्ट में, तो भी इट विल फाइन फॉर मी, बट यू हैव टू यूज सम इनोवेटिव थिंग इन दैट. बड़ा करने के पीछे आप कुछ नहीं सीखते हो, तो मेक इट वेरी सिंपल. ओके, एटलीस्ट यू डिजाइन योर वेब पेज, आपको होम पेज में क्या चाहिए, एटलीस्ट यू मतलब आप ग्रुप फॉर्म करके यू डिस्कस अमंग योर ग्रुप, फिर आप उसका डायग्राम बनाओ. डायग्राम बनने से यू विल बी डायरेक्टली कन्वर्टिंग दैट डायग्राम इनटू अ टेबल्स. देन यू विल गेट टू नो कि आप फिर टेबल्स कैसे होना चाहिए. और है ना, हमेशा याद रखना कि जब भी आप डेटाबेस वाला कोई प्रोजेक्ट करते हो, सो गो डू रिवर्स इंजीनियरिंग. व्हाट आई एम गोइंग टू टेल इज, इन स्पाइट ऑफ डिजाइनिंग फर्स्ट फ्रंट एंड, आप पहले डेटाबेस फिक्स करो. बहुत सारा रिडंडेंट वैल्यू है, उसको नॉर्मलाइज करना सीखो. ऐसे टेबल्स बनाओ कि जहाँ पे आपकी वैल्यूज रिपीटेड नहीं आए और एक दूसरे को कनेक्ट भी कर पाओगे. ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा आपके पूरे प्रोजेक्ट में एक ही टेबल आएगा. आपके टेबल में एटलीस्ट 4 टेबल्स तो होने ही चाहिए बाय डिफॉल्ट.
फोर के आगे हो तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट फोर टेबल्स यू हैव टू वर्क ऑन। फोर टेबल्स मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप कैसे भी टेबल्स को डिवाइड करोगे, देर विल बी अ प्रॉपर सेंस ऑफ यूजिंग दैट फोर टेबल्स। समझ में आ रहा है? इफ आई एम यूजिंग अ स्टूडेंट डेटाबेस सिस्टम ऑफ द कॉलेज, तो मुझे कॉलेज का अगर सिस्टम डिजाइन करना है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं एक ही क्लास बनाऊंगी क्या? नहीं, एक एडमिन का क्लास होगा या टेबल होगा, दूसरा डिपार्टमेंट का एक टेबल होगा, है ना, थर्ड अकाउंट का अलग टेबल होगा। लाइक दिस यू हैव टू सेपरेट। एंड अगर मुझे कोई कॉम्बिनेशन में रिजल्ट चाहिए, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट भी होने चाहिए, अगर वो रिलेटेड है। अगर वो रिलेटेड नहीं है तो लेट इट बी, लेकिन एटलीस्ट वो फोर टेबल में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन हो। आपको हर कंसेप्ट यूज करते आना चाहिए, प्राइमरी फॉरेन के ऐसे कुछ प्रोजेक्ट बनाओ। एंड बेटर ऑप्शन इज, अगर आपको आजू बाजू कहीं कोई मिल रहा है कि दे वांट टू इम्प्लीमेंट वेबसाइट, और उनको कुछ हेल्प चाहिए, उनको कोई अपना प्रोजेक्ट मैन्युअली, जो चीज़ें अभी बहुत लोग प्रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस के लिए, तो आपको ऑनलाइन साइट्स किसी का लेना है, यू ट्राई फॉर दैट स्पॉन्सर्ड टाइप प्रोजेक्ट। उससे क्या होगा, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो भी कंसेप्ट है वो भी अप्लाई हो जाते हैं, एंड योर प्रोजेक्ट इज ऑल्सो टू इम्प्लीमेंटेड, एंड दैट टू आपको यूजर्स से रिक्वायरमेंट लेना आ जाएगा, उसको प्रॉपर एक्शन प्लान बनाते आएगा, एंड यू विल अचीव समथिंग। किसी के आप किसी के लिए कुछ बना रहे हो, एंड देन द पीपल आर यूजिंग योर प्रोडक्ट, यू विल बी वेरी प्राउड कि अरे मेरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। सो लाइक दैट, क्लियर? तो सब लोग अपना प्रोजेक्ट ग्रुप फॉर्म करो। आई विल बी गिविंग दिस वीक, मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे, आई विल बी शेयरिंग अ लिंक जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का ग्रुप मेंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन डालना है। एंड वन थिंग, आपका एसडीटीएल का प्रोजेक्ट और डीबीएमएस का प्रोजेक्ट डिफरेंट होगा, डोंट यूज सेम प्रोजेक्ट, ठीक है? और आपको सेम भी करवाना है, तो डीबीएमएस के लिए अलग चीजें बतानी होगी और वहां पे अलग चीजें, लाइक आई विल बी मोर फोकसिंग ऑन योर डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल दिस बैकएंड वाला पार्ट। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम यू ऑल? फॉर नेक्स्ट लेक्चर ना, आप लोग माइस्क्यूएल का कनेक्टर फाइल है, कनेक्टर माइस्क्यूएल कनेक्टर जार फाइल है, वो डाउनलोड करके रखो। इक्लिप्स इक्लिप्स एक इंस्टॉल करके रखो, ठीक है? पीएचपी, अगर कनेक्शन देखना है तो पीएचपी का, विंडोज का सिस्टम है तो पीएचपी इंस्टॉल करके रखो, और वैम सर्वर इंस्टॉल करके रखो। सो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में जो भी आपको दो डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी, यू ट्राई ऑल दिस, एंड यू हैव टू सबमिट विद दैट असाइनमेंट्स, ठीक है? Clear with this? Any more doubts? So in next lecture, we'll be completing our unit number 2. Then we'll be starting our unit number 3, where we'll be learning chords rule and normalization concept. So normalization is very, very important. So shall I stop then? Okay. You take break and join for next lecture.